right? So we are going to start today animal kingdom. So all are the animals are multicellular and heterotrophic. What do you mean by heterotrophic? दूसरे पर डिपेंडेंट. Yes, Other. they cannot synthesize their own food, right? Animal kingdom is the most diverse than the plant kingdom. Animal kingdom is most diverse than the plant kingdom. Now we'll see the basic of classification. So, basis of classification. First is levels of organization. Second one is body symmetry. Third one is the germ layers. Fourth is the coelom. Fifth is metamerism. And sixth one is notochord. तो ये चीजें क्या क्या है हम देखने वाले हैं इसमें. Now, level of organization. Based on organization of the cells, there are three levels of organization. First one is cellular level organization. That is, cells are arranged as a loose cell aggregates. Example, sponges. Second one is tissue level organization. Abhi dekho, cellular level means only cells will be there. There is no tissue, right? So example is sponges. Second one is tissue level organization. Cells are arranged into tissues. Example, coelenteраtes and ctenophores. तो coelenteраtes, ctenophores वगैरह क्या है हम आने वाले अभी चैप्टर में आगे आगे देखने वाले हैं इसमें. And third is organ level organization. Tissues are arranged into organs and the organs are associated to form the organ system. Each system perform a specific physiological function. तो ये systems क्या है आपको पता ही है, जैसे circulatory system है, excretory system है, digestive system है. इस टाइप के organ level organization इनमें पाए जाते हैं जो कि tissues से बनते हैं. Cells से बनते हैं tissues, tissues से बनते हैं organs, organ से बनती है system, right? Example is all higher animals from Platyhelminthes to chordates. Next, we will go organ system of different animals show complexities. For example, digestive system of cnidarians and Platyhelminthes. It's incomplete. Only a single opening function as a mouth and anus, right? Complete digestive system has two openings, mouth and anus. Circulatory system is two types, open and closed circulatory systems. तो different animals में different type की systems है, ये आपको समझना है इसमें, है ना. तो digestive system जब cnidarians और Platyhelminthes जो है इनकी incomplete रहती है, only single opening function of mouth and anus will be there. Complete digestive system has two openings, mouth and anus, right? तो incomplete में क्या हो रहा, mouth और anus एक ही है, mouth और anus. But complete digestive system में क्या है, mouth अलग है और anus अलग है. Now the circulatory system भी जो है वो टू टाइप की है. वो कौन से टाइप की है हमने सर्कुलेशन में पढ़ा है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. मुझे कोई बताएगा ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है बेटा? किसको पता है? सर ओपन में ब्लड का कांटेक्ट डायरेक्टली टिश्यू के साथ आता. अच्छा, और क्लोज में? क्लोज्ड में वेंस रहते. यस.
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी होता है, बराबर। Yes, sir. Now the body symmetry. It is the arrangement of similar body parts on two sides of main axis of the body. So based on the symmetry, animals are of two types, asymmetrical and second one is the symmetrical animals. तो बॉडी जिनकी बॉडी दो अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती है उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। एग्जांपल है स्नेल्स एंड सम स्पॉन्जेस, राइट। और symmetrical means body can be divided directly into the two parts, two halves we can say. Now symmetry is of two types. Body symmetric जो है animals, देखो बॉडी सिमेट्री दो टाइप की है, असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल है उसमें भी दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज द रेडियल सिमेट्री एंड सेकंड इज द बायलैटरल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या होता है? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन। जैसे आपने फ्लावर्स में पढ़ा है ये सब चीजें, है ना। फ्लावर जब पढ़े थे हम उसमें ये सिमेट्री पढ़ी थी, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री क्या है। तो कोई भी एंगल से उसको अगर कट किया जाए तो दो इक्वल पोर्शन इसमें होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, राइट। एग्जांपल सम स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट एंड इक्विनोडर्म्स, और इकाइनोडर्म्स भी बोलते हैं इनको। ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज द बायलैटरल सिमेट्री, right? The body can be divided into the two right and left halves only by the section passing through the longitudinal axis. तो इसमें body can be divided into two left and right halves only. All vertebrates and many invertebrates. Such animals as an upper or vertebral dorsal side, a lower ventral side, left and right lateral side, anterior side and posterior side. आप इसमें देख सकते हैं डोर्सल साइड किसे बोलते हैं, पीछे वाला पोस्टीरियर, सामने वाला एंटीरियर, राइट। और ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसा या खड़ा। सो ये जो एनिमल्स का एग्जांपल बताया है फिश का, इससे आप समझ सकते हैं व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री। Now third point is germ layers, the layer of gastrula from which the body organs are formed. ये गैस्ट्रुला स्टेज कब होता है? किसे पता है क्या इसके बारे में? हो नहीं बोलो। जर्म लेयर्स, No. जो जर्म सेल्स है वो है कौन से सेल? जो बेसिक सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स देयर इज ए एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो में जो 16 स्टेज में जाता है एम्ब्रियो, उस स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रुला। समझ में आया? वो रहती है जर्म लेयर, जो बेसिक बॉडी सेल्स है एकदम, उसको स्टेम सेल्स भी बोला जाता है। उससे ही पूरे बॉडी के अलग अलग सेल्स बनते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल किसे बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में टू जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। एग्जाम्पल है इसमें स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल किसे बोलते हैं? जिनमें दो जर्म्स की लेयर रहती है। कौन सी? एक्टोडर्म। ये जो बाहर वाली देख रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। और
एंडोडर्म कौन सी है? ये इनर लेयर है, दैट इज अ डिप्लोब्लास्टिक। अब ये साइड वाला है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें एक बीच में आप लेयर देखेंगे, दैट लेयर इज मेसोडर्म, है ना। तो पिछले इसमें मैंने ये लेयर्स के बारे में पिछले टॉपिक में आपको बताया भी था। समझा क्या ये चीज? ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जो सेल्स है उनमें ये जो लेयर्स है उस पे डिपेंड करता है कि वेदर द एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Now, coelom, that is a body cavity. It is the space between the body wall and the gut wall. ये जो coelom किसे बोलते हैं? It is the space between the body wall and the gut wall. ये आप यहाँ दिख रहे हैं। Coelom separates the muscles of gut and the body wall. On the basis of nature of coelom, animals are of three types: acoelomate, pseudocoelomate, and eucoelomate. That is a true coelomate भी बोलते हैं इनको, राइट? तो coelom किसे बोलते हैं? जो बॉडी वॉल और गट वॉल है उनमें जो स्पेस रहती है उस स्पेस को बोलते हैं coelom, एंड उनका जो नेचर है उसके बेसिस पे तीन इसमें इनको डिवाइड किया गया है: acoelomate, pseudocoelomate और eucoelomate। तो ये तीन टाइप के coeloms पाए जाते हैं। अब acoelomate किसे बोलते हैं? अब फर्स्ट वाली फिगर देखो, no coelom, the space between the body wall and the digestive cavity is filled with the matrix, that is matrix is parenchyma. Example: porifers, coelenterids and the flatworms. सेकेंड वन देखो आप, सुडो मीन्स coelom है लेकिन कौन सा है? सुडो है। सुडो मीन्स एक्चुअल coelom नहीं है लेकिन लगता है वैसे। हियर blastocele becomes a coelom. It is not lined by peritoneal layer. Example is roundworm. This second जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं। और थर्ड वन इज eucoelomate, right? That is a true coelomate. The coelom in the animal except the roundworm arise from the mesoderm. Coelom is lined by peritoneal layer and is filled with the coelomic fluid. Example: annelid to mammals. You can see here coelom is present, right? This is a coelom. Hemicoelomates किसे बोलते हैं? In arthropods like mollusk, true coelom is reduced and filled with the blood. अभी hemocoelomates किसे बोलते हैं? जिनमें hem means iron, that is the blood. तो हिम जहां पे भी आता है वर्ड वहां पे एक्चुअली ब्लड से रिलेटेड ही आता है। तो जो सर्टन आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क जो है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रू coelom एंड रिड्यूस्ड एंड फिल्ड विद द ब्लड। तो हीमोसिलोमेट्स इनको बोला जाता है। ये समझा कि कोई डाउट है बेटा? स्नेहा, सुंदरम, यश, गायत्री, देवेश? नो डाउट सर। समझ में आया ना? coelom इस कैविटी को बोलते हैं acoelomate, pseudocoelomate एंड true coelomate, that is eucoelomates, right? So coelom is there. You can see the coelom. This is a direct digestive tract. This is pseudocoelom. coelom है लेकिन कैसा है? pseudo है। और यहाँ पे true coelom you can see here. Functions of the coelom.
अब ये जो सिलोम है इसके क्या फंक्शन है मेन, ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो सिलोम है ना, इस पे आज तक क्वेश्चंस तो आए नहीं, लेकिन चांसेस बहुत है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं तो अभी पूछ सकते हैं, है ना। तो इसके क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्री जो थी इसके पहले, उस पे भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था पहले, उस पे भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। उसके बाद में सिमेट्री पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये डिप्रोब्लास्ट और डिप्लोब्लास्टिक पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जर्म लेवल पे। और ये जो सिलोम है, तो किसको सूडो सिलोम बोलते हैं, ये वगैरह सब क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं आपको इसके। अब फंक्शंस ऑफ सिलोम क्या है? इट अकोमोडेट्स द विसरल ऑर्गन। उसके बाद में सिलोमिक फ्लूइड प्रोवाइड्स मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू द विसरल ऑर्गन। अभी मुझे बताओ विसरल ऑर्गन क्या है? विसरल ऑर्गन किसे बोलते हैं? किसी को पता है क्या? यस नो बोलो। वेन ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स ये है कि जिनमें सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं उनमें, है ना। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, सभी ट्रैक में सॉफ्ट टिश्यू है ना। हार्ड पार्ट है क्या कहीं? यस सर। हार्ड पार्ट नहीं है ना कहीं, तो विसरल ऑर्गन उनको बोलते हैं। तो फंक्शन है इट अकोमोडेट्स द विसरल ऑर्गन। एक सेकंड, क्लास चालू है, करता हूं कॉल। हाँ, विसरल ऑर्गन, राइट। अभी सिलोमिक फ्लूइड प्रोवाइड्स मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू विसरल ऑर्गन्स। तो सिलोम का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू द ऑर्गन। इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्सॉर्बर, है ना। जो हम गिरते संभलते इधर उधर, तो उस टाइम पे इट विल एक्ट एज अ शॉक एब्सॉर्बर। एंड द फ्रिक्शन इज, इससे वजह से क्या हो रहा है, ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट के वजह से फ्रिक्शन जो है, इंटर सेलुलर जो फ्रिक्शन है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। ये समझ में आया आपको? फंक्शन समझ में आए? यस सर। Okay. Now we will move to next thing, that is a metamerism, or it is also called as segmentation. The point number 4.1.5 in NCERT, page number 48, right? इसमें से पूछने के चांसेस कम है, लेकिन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, क्लासिफिकेशन पहले का, इस पे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है नीट में directly. So what is segmentation? In some animals the body is formed by similar parts or segments, और उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट को मेटामर्स भी बोलते हैं। This is called as segmentation. This segment is called metamerism, right? Example is annelids and arthropods, right? In vertebrates only internal metamerism is there. वर्टिब्रेट्स जो है, इनमें सिर्फ इंटरनल टाइप का मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ नोटोकॉर्ड, राइट। इट इज अ सपोर्टिंग रॉड फॉर्म इन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। जो नोटोकॉर्ड है, इट इज अ सपोर्टिंग पार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स चाइल्ड स्टेज, ये भी हम बोल सकते हैं इसको, राइट। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स एंड दोज विदाउट नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स किसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है। अभी नॉन कॉर्डेट्स का एग्जांपल कौन से हैं? पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। तो ये एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, ध्यान में रखना।
Now we will move to actual classification of animals. So kingdom Animalia में दो टाइप के एनिमल्स है जो हमने अभी नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ा, उसके बेसिस पे नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, these are the two type of classification will be there basically, right? So non-chordates are further classified, right, into the different phylums. First one is Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. है कि नहीं सिंपल? कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो इसमें जो है एनिमल किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फाइलम्स, राइट, और प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू द डिवीजन। ये तो पता है ना आपको, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। यस सर। तो जो फाइलम्स है, ये इतने सारे फाइलम्स है, उसमें सबसे पहला है पोरीफेरा, राइट, विच इंक्लूड द स्पॉन्जेस। निडेरिया जो है, इसमें जेली फिशेस आती है। टेनोफोरा में क्या है, कॉम जेलीज आती है। प्लेटीहेल्मिंथिस फ्लैट वर्म्स, एस्कीहेल्मिंथिस राउंड वर्म, एनेलिडा रिंग्ड वर्म्स, आर्थ्रोपोडा जॉइंट लेग्ड एनिमल्स। मोलुस्का में क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इकेनोडर्माटा स्पाइनी स्किन्ड, राइट, जिसमें स्पाइन्स होते हैं, और हेमिकॉर्डेट्स। तो फर्स्ट फाइलम मीन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज कॉर्डेटा। सब फाइलम्स में उन्हें यूरोकॉर्डेटा है, उसके बाद में सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रा। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया है 4.4 है ना, पेज नंबर 49 देखो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है ना, वो उनका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो फाइलम कॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो कॉर्डेटा का सब क्लासिफिकेशन किया है यूरोकॉर्डेटा, उसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। तो ये सब फाइलम्स हैं। नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन और सिस्टम लेवल। नाउ germ level, germ layers, symmetry, coelom and phylum. So in this way the animal kingdom is classified. I thought this is sufficient for today. We will continue the classification tomorrow. Is this okay? Yes, now बोलो कि कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करो कि कर लेंगे? हाँ सुंदरम, मयूर, यस सर। कर लेंगे ना? हाँ Okay, stop here today. सर आप रिकॉर्डिंग पोस्ट करोगे वहां पे जहाँ पे करते थे? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो ठीक है रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मैं, कि आपको फिर से अगर देखना है तो आपके लिए अवेलेबल रहेगा इस, ठीक है? तो मैं थोड़ी देर में अभी पोस्ट कर देता हूँ इसको। और सब हाँ लोग सर। अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बाद में कुछ भी आपके काम का रहा है ना, तो आपको ऑटोमेटिक फ्लैश हो जाएगा। ओके,
चलो स्टॉप कर देता हूं मैं।